So let us try to understand the probability and the definition of the related terms to probability. तो probability क्या है? पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, what do you understand by probability? Anyone will like to tell me what he or she understands with probability? Good afternoon, Manshur beta. तो आप लोग probability के बारे में कुछ भी बता सकते हैं. Frequency of event? I didn't understand exactly what is the meaning of frequency of event. How do you elaborate it? You can unmute and speak. Chance. Probability is chance. Okay. Chance of what? Chance of a particular event to occur. Good, good. So, what is event? That means we need to understand what is event. And if you understand what is event, then you will try to know that when some particular event has better chance or more chance of occurrence, right? और जब आपको ये पता चल जाएगा तब हम शायद प्रोबेबिलिटी को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे. ठीक है, ओके. तो लेट अस ट्राई टू बिल्ट अप द डिस्कशन, है ना? ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग. Do you understand, do you believe that there are phenomena in nature which have their outcome which cannot be predicted in advance? Can you say? Can we say this, that many phenomena around us, or rather you may say that most of the phenomena which are happening around us, their outcome cannot be predicted with full certainty in advance unless the phenomena occurs? Yes or no? And if you think yes, there are such phenomena, then you have to name some of them. Yeah, like like breakout of the COVID-19 couldn't be predicted, right? Definitely. And many such. This is one of the event, one of the thing, but there are many such phenomena. ये तो बहुत बड़ी बात हमने बोली. ठीक है, कि कोई पैंडेमिक है, कोई एपिडेमिक है, वॉर है ना, पीस है. ऐसे तमाम एंड तमाम फिनोमेना है जिनके आउटकम को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कंप्लीट सर्टेनिटी से. सो एक बात पर तो आप एग्री कर गए दैट देयर आर फिनोमेना इन नेचर हैविंग देयर आउटकम्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. ऐसे कुछ छोटे छोटे सिंपल सिंपल अगर फिनोमेना को एक्सप्रेस करना हो, जैसे कि व्हेन व्हेन आई when you are just joining this class, right, then the outcome that you may be able to understand or you may not be able to understand the concept properly, this is also cannot be predicted in advance unless you go through the class, right? Similarly, if you toss a coin, then there are two outcomes, head aayega ya tail aayega, but you cannot predict in certainty in advance unless the coin is double headed. You draw a certain card. So let me name some of the such outcomes, such phenomena like tossing of a fair coin, rolling a fair dice, passing certain course in an exam, rolling a fair dice, drawing a card from a well shuffled pack of cards, measuring the lifetime of some electronic or electrical equipment like bulb, tube light, CFL, etc.
तो ऐसी सारी फिनोमेना जिनके आउटकम्स को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी। थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ दोज मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ सच रैंडम फिनोमेनास। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे फिनोमेना की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, और उस मॉडलिंग के थ्रू, उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर फिनोमेना के आउटकम्स के अकरेंस की जो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी कितनी है। So it is the mathematical model of measuring the certainty or uncertainty of some event. तो आप लिख दो, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ सच रैंडम मतलब जिसको हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिनोमेना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग द अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी ऑफ देयर आउटकम्स। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम एक अपने किसी नियर एंड डियर वन को कॉल करते हैं, राइट? तो कॉल करते हैं तो आपको लगता नहीं कि कॉल करने के पहले आपको पता होता है क्या कि कॉल कनेक्ट हो जाएगी? We hope, we expect that call will get connected immediately, but certainty से हमें नहीं पता होता है कि कॉल कनेक्ट हो जाएगी, राइट? अब कॉल कनेक्ट हो जाएगी या होने के कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि कॉल कनेक्ट होगी, राइट? अब कितने परसेंट चांसेस है कि नहीं कनेक्ट होगी, ये जो मेजरमेंट है ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी करती है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसी तरह की सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को मेजर करने का मैथमेटिकल मॉडलिंग है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, प्रोसीजर है। अब आ जाते हैं कि ये तो हो गया कि बेसिक बात है क्या। बेसिक बात ये है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड अस इज डिपेंडिंग ऑन चांसेस, एंड that means all the events which are occurring surrounding us, they cannot be predicted in advance, or their outcomes cannot be predicted in advance, और उनके आउटकम्स के सर्ट होने की, अकर करने की सर्टेनिटी का जो मेजरमेंट है या अनसर्टेनिटी का जो मेजरमेंट है, वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम स्टडी करते हैं। नाउ डेफिनेशन, व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो आपने, आप में से मैक्सिमम ने शुरू में बताया था कि प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, लिख दो, यही सेम चीज लिख दो कि प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ सम इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ये बात आपने बताई थी, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, और मैंने एग्जैक्टली आपकी डेफिनेशन को कॉपी कर दिया कि यही है एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, यही है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। सबको बात समझ में आ गई है? जिसने बोला था उसको तो डेफिनेटली समझ में आ गई होगी, है ना? बट आई होप अभी सबको समझ में आ गया होगा। अब जिसने बोला था ये डेफिनेशन, आर्यन ने बोला था, किसने बोला था? दिशांत ने बोला था, किसने बोला था भाई? मुझे भी बताओ, लेट मी चेक। आर्यन ने बोला था, ठीक है। तो आर्यन बोला, बेटा आप बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवेंट? इवेंट से आप क्या समझते हैं? हाउ डू यू डिफाइन इवेंट? व्हाट इज इवेंट? अब ये जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हर कोई आंसर कर सकता है। अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब एवरी टास्क इज एन इवेंट? Task is not an event, because if I am drawing a card from a well shuffled pack, then drawing of card is not an event. Mansa ne bola happening, yes, happening is an event, definitely, but could you more elaborate it? And mishappening, happening event है तो mishappening भी event है, isn't it? ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इवेंट, राइट? तो इवेंट क्या है? इवेंट लिखिए, इवेंट की डेफिनेशन लिखिए। इवेंट इज
it is defined as an outcome. It is defined as an outcome of some experiment. Outcome or set of outcomes of some experiment. For example, if I say tossing a coin, तो इस ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसके आउटकम क्या है, तो हेड का अकरेंस एक इवेंट है, अकरेंस ऑफ टेल इज ऑल्सो एन इवेंट, है ना? तो अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल, दे आर द इवेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. टॉसिंग अ कॉइन क्या है? ये आउटकम नहीं है, इट इज एन एक्सपेरिमेंट. ऐसे रोलिंग अ डाइस एक एक्सपेरिमेंट है, 1 का अकरेंस, 2 का अकरेंस, 3, 1 से लेके 6 नेचुरल नंबर के फेसेस का आना, ये इवेंट है. तो इवेंट समझ में आ गया? इवेंट इज एन आउटकम ऑफ सम एक्सपेरिमेंट. देखो कितना कनेक्टेड है ना. प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. इवेंट क्या है? इवेंट इज डिफाइंड एज एन आउटकम और सेट ऑफ आउटकम्स. आउटकम भी बोल सकते हो या सेट ऑफ आउटकम्स भी बोल सकते हो, और यहां लिख दो ए बी, और सेट ऑफ आउटकम्स. अब ये सेट ऑफ आउटकम्स कैसे बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोलिंग अ डाइस की बात करूं, रोलिंग अ डाइस, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे? तो 1, 2, 3, ये इनमें से कोई भी फेस आ सकता है, 4, 5, 6, ये आउटकम्स है. तो अगर कोई बोलता है अकरेंस ऑफ प्राइम फेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अकरेंस ऑफ प्राइम फेस, तो ये एक इवेंट है कि नहीं? और अकरेंस ऑफ प्राइम फेस जो इवेंट है, इस इवेंट में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? क्या क्या फेस आने पर आप बोलेंगे ये इवेंट हो रही है? 2 आया तो भी प्राइम फेस है, 3 का अकरेंस हुआ तो भी प्राइम फेस है, और 5 का अकरेंस हुआ तो भी प्राइम फेस है. तो देर आर 3 आउटकम्स एट ए टाइम. ऐसा तो नहीं होगा कि 2 और 3 दोनों एक साथ आ जाएगा किसी डाइस पर, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है. लेकिन अगर आप डाइस रोल कर रहे हैं तो 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और ये तीन के तीनों आउटकम इसी को, इसी बात को सर्टिफाई करते हैं कि ये एक इवेंट है जिसके कई सारे पॉसिबल आउटकम सपोर्ट कर रहे हैं. तो इवेंट एक इंडिविजुअल आउटकम भी हो सकता है, जैसे कि अकरेंस ऑफ 1, ये भी एक इवेंट है. अकरेंस ऑफ 4, ये भी एक इवेंट है. तो एक इंडिविजुअल आउटकम भी हो सकता है और सेट ऑफ 2 और मोर आउटकम्स भी हो सकते हैं. आई होप यू गॉट इट. सभी बच्चों को क्लियर है व्हाट इज इवेंट? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो अब एक बार फिर से मैं आपसे पूछूंगा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा? इवेंट का मतलब समझ में आ गया? कोई डाउट हो अगर ये दो डेफिनेशन में, प्लीज लेट मी नो. और समझ में आ गया तो फटाफट बोलो यस. ग्रेट. सबको समझ में आ गया. अब मेरे को एक डाउट है, मैं आपसे पूछूंगा, और लेट मी सी कि कौन आंसर करता है, क्योंकि सबको समझ में आ गया तो सारे बच्चे आंसर कर देंगे, आई होप सो. अब देखो कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया, सभी बोले थे सबको क्लियर हो गया, बट अभी भी सिर्फ 6-7 बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में आ गया, बाकी लोग डर गए कि अब कैसे बताएंगे, है ना? मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि इवेंट इज एन आउटकम ऑफ सम एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? डिफाइन एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है? क्विक, जल्दी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर योर आंसर.
ये तो सन्नाटा हो गया। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। चलो मैं वेट करता हूँ 1 मिनट आपको। 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकेंड एनफ है। अगर आपको आता है तो आप बोल देंगे। चलो कुछ कुछ एग्जाम, कुछ कुछ आंसर्स रिप्लाईज आ रही हैं। आरव ने बोला प्रोसीजर, मानसा ने बोला इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, और अस्मिता ने तो एक्सपेरिमेंट कर ही दिया, बोला हम भी क्लास में आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एक्सपेरिमेंट एक प्रोसीजर है। आरव ने बोला प्रोसीजर है, बिल्कुल ठीक है आरव। एक्सपेरिमेंट एक प्रोसीजर है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट क्या है तो लिख दो, अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, a mathematical operation which has well defined outcomes. I repeat, a mathematical operation which has well defined outcomes is called experiment. What do you mean by well defined outcome? That means when that operation is being performed, what are the possible outcomes? They are all known in advance. For example, if you are throwing a coin, then you already know that there are two outcomes, either head will occur or tail will occur. If you're rolling a dice, then you already know that there are 6 possible outcomes, either 1 occur or 2 occur or 3 or 4 or 5 or 6 or 7. So all possible outcomes are known in advance. ठीक है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है या प्रोसीजर है जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स वेल डिफाइंड होते हैं और उनके बारे में पहले से पता होता है। उनके अकरेंस के बारे में नहीं पता होता कि वो अकर करेंगे या नहीं करेंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये नहीं पता होता, बट वो सारे आउटकम्स हैं ये पता होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स ले तो फ्लिपिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स, दो कॉइन्स को टॉस करना, रोलिंग अ पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस, रोलिंग अ सिंगल डाइस, थ्रोइंग अ सिंगल कॉइन, कुछ भी ऐसा ले सकते हो। दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे अगर मैं रोलिंग अ फेयर पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस, अगर दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा? आउटकम होगा x कॉमा वाई। एक्स इज द नंबर अकरिंग ऑन द फर्स्ट डाइस, वाई ऑन द सेकेंड डाइस। एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होंगे और दोनों की वैल्यू 6 से कम होगी, लेस देन और इक्वल टू 6 होगी। तो एक्सपेरिमेंट का ये मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई बच्चा मेंटली अगर इंसेन हो और वो क्लास के लिए जा रहा है घर से निकल करके, तो उस केस में आउटकम के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट मेंटली साउंड, सो ही कैन लैंड अप एनीवेयर। ठीक है, he can come to the class, he can go and sit in restaurant, he can go to some park, he can go any side, he can just pick up a bus and go to Shimla, or he can take any sort of decision। तो वहां पर हमें आउटकम्स के बारे में एडवांस में पता नहीं होता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते। तो एक्सपेरिमेंट हम मैथमेटिकली उसी को बोल सकते हैं जिसके आउटकम्स पहले से मालूम हों। जैसे ये पहला केस है, फ्लिपिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट है, इसके आउटकम बताओ। क्यों हमने बोला एक एक्सपेरिमेंट है? क्योंकि अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? तो आउटकम हो सकता है, फर्स्ट कॉइन का आउटकम एक्स है, सेकेंड का वाई है, हेड कॉमा टेल, या हेड कॉमा हेड, या टेल कॉमा हेड, और टेल कॉमा टेल। तो x is the outcome of first coin and y be the outcome of second coin. Then x comma y kind of ordered pair will be a possible outcome of flipping a pair of fair coins. तो ये चार पॉसिबल आउटकम आपको दिखेंगे। क्या इन चारों के अलावा भी कोई आउटकम पॉसिबल है? Is there some other possible outcome? Definitely not. That's why we say that सारे आउटकम वेल डिफाइंड हैं और ये एक एक्सपेरिमेंट रिगार्ड किया जाएगा।
तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सभी बच्चों को। आगे आगे मूव करते हैं। अब देखो हर चीज कनेक्टेड है ना। जब आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई तो उसी डेफिनेशन में इवेंट था, मैंने बोला इवेंट क्या है, तो हमने पहले इवेंट को डिस्क्राइब किया, फिर इवेंट की डेफिनेशन में एक टर्म कॉइन हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट। तो हमें एक्सपेरिमेंट समझना पड़ा क्या। अब आपको क्लियर कट समझ में आया कि भाई ऐसा एक कोई एक्सपेरिमेंट होगा, उसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स होंगे, और उन्हीं में से किसी आउटकम या आउटकम्स के होने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफाई, जस्ट कैटेगराइज द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट प्राइमरली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। तो एक्सपेरिमेंट आर ऑफ टू टाइप, वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड अदर इज कॉल्ड नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसी को हम स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इसी को हम स्टोकेस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली जो रैंडम नहीं है उसको हम नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे, कौन से एक्सपेरिमेंट है जिनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो वापस एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन पे जाओ। एक्सपेरिमेंट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें सारे आउटकम एडवांस में पता होते हैं, बट उनमें से किसी भी आउटकम के होने को अगर हम तब तक प्रेडिक्ट ना कर सके कंप्लीट सर्टेनिटी के साथ जब तक कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ना हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या बोला मैंने, किसी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट हम तब बोलेंगे, रैंडम मतलब क्या, जो रैंडमली होता है, ठीक है, आप उसको प्रेडिक्टेबल नहीं है वो। तो अगर किसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट के किसी स्पेसिफिक आउटकम को सर्टेनिटी के साथ में प्रिडिक्ट ना किया जा सके अनलेस द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, then such experiment is called random experiment. So note it down now that if the occurrence of its exact outcome in any specific performance cannot be predicted with certainty before the completion of experiment, then the experiment will be termed as random experiment. For example, in a rolling of a dice या in throwing a coin, अगर एक क्वाइन को थ्रो कर रहे हैं, फेयर क्वाइन है, बायस्ड क्वाइन नहीं है, तो हमें ये तो पता है कि टॉसिंग अ क्वाइन में क्या क्या आउटकम्स है, ये मालूम है, सबको मालूम है। टॉसिंग अ फेयर क्वाइन में आउटकम्स क्या हैं, आउटकम्स हैं हेड और टेल। बट जब तक टॉस को आप देख नहीं लेते हो तब तक आपको पता होता है कि क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हेड ही आएगा, या कैन यू प्रेडिक्ट बिफोर द टॉस हैपेंस दैट टेल आएगा, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप टेल टेल बोलते रहोगे, हर बार हेड आता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हेड बोलते हो टेल आ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हेड बोलते हो हेड आ जाता है, टेल बोलते हो टेल आ जाता है। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनसर्टेन है, तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। रोलिंग अ फेयर डाइस, रोलिंग अ फेयर डाइस, ये क्या है, अकरेंस 1 आएगा या 2 का अकरेंस होगा, या 3 फेस दिखेगा, या 4 फेस शो होगा, या 5 या 6, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि हम लूडो खेलते हो ना, आप जब रोल करते हो तो कौन सा फेस ऊपर आएगा ये हमें नहीं पता होता है, ये रैंडम है। बट अगर मान लो कि सारे फेसेस पे 6 लिखा हुआ, सारे फेसेस पे अगर 6 लिखा हुआ, तब तब तो हम प्रेडिक्ट कर जाएंगे, क्योंकि चाहे जैसे रोल करोगे 6 ही आएगा, तो वो नॉन रैंडम हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपरली शफल्ड का, वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड है, प्रॉपर उसको सफल किया गया है, और अब बिना देखे हुए आप एक कार्ड निकाल रहे हो, तो वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर एक कार्ड का पैक है जिसमें ऊपर सारे रेड कार्ड पड़े हुए, नीचे सारे ब्लैक कार्ड पड़े हुए, उसको शफल नहीं किया गया, और आप उसमें से अपर हाफ डेक से कोई कार्ड निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, नॉन रैंडम हो जाएगा। तो ये बात है, क्योंकि जहां प्रेडिक्टेबल हो जाएगा वहां पर नॉन रैंडमनेस। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब, समझ में आ गया। अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स आउटकम और सैंपल पॉइंट कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, देन इट इज कॉल्ड नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट।
जैसे रोलिंग अनबायस्ड डाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग अ फेयर कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स रैंडम एक्सपेरिमेंट है. वेयर Whereas if I say that rolling a biased dice है ना, वो नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. और टॉसिंग अ टू हेडेड कॉइन नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. थ्रोइंग अ स्टोन, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अनशफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो ये नॉन रैंडम हो जाएगा. एक एक स्टोन लेकर के ऐसे आप ड्रॉप करो, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली ऐसे ड्रॉप करो, तो क्या है, ग्रेविटी इज गोइंग टू पुल इट डाउन, सो एवरीबॉडी विल प्रेडिक्ट दैट इट इज गोइंग टू गेट डाउन अनलेस इट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ एस्केप या वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट. तो तो ऐसे केस में वो रैंडम नहीं रह जाएगा, है ना. बट अगर ऑर्डिनरी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू गेट डाउन ऑन द ग्राउंड, सो इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एनीबॉडी कैन प्रेडिक्ट दैट इट इज गोइंग टू फॉल डाउन. तो आई होप एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया. एक्सपेरिमेंट की दोनों कैटेगरीज, रैंडम और नॉन रैंडम. रैंडम जो है वही स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक मतलब होता है प्रोबेबिलिस्टिक, अनसर्टन. और स्टेटिस्टिकल क्यों, क्योंकि इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके हम पता कर लेते हैं आंकड़ों से, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा निकाल करके. जैसे कॉइन है, अब ये कॉइन को आप मिलियंस ऑफ टाइम टॉस करो, उसका ट्रायल करो, और फिर अगर तुम्हें पता चल जाता है कि 50% चांसेस हैं कि इस पे हेड आएगा और 50% चांसेस है कि टेल आएगा, राइट. तो इसलिए उसको स्टेटिस्टिकल बोलते हैं. तो एक्सपेरिमेंट का क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया. अब आ जाते हैं प्रॉपरली इवेंट, इवेंट का टाइप और उसकी कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं. तो आप नोट कर चुके हैं बेटा, तो मैं आगे चलूं, क्योंकि ये सारे पॉइंट नोट कर देना. +2 में दोबारा ये चीजें नहीं बताऊंगा, हम लोग स्ट्रेट अवे क्लासिकल डेफिनेशन पर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, है ना. तो ये जो बेसिक डेफिनेशन टर्म्स और उनके जो बारे में जो डिटेल कर रहा हूं मैं, ये एक बार के लिए हो रहा है, इसको अच्छे से समझ लो और खूब क्रॉस क्वेश्चन करो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो. ओके, सो नाउ जस्ट कम टू द इवेंट. एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, अब इवेंट पे आते हैं. इवेंट क्या है, तो इवेंट की डेफिनेशन लिखो. इवेंट एंड इट्स टाइप, ऐसे हेडिंग देंगे, इवेंट एंड इट्स टाइप. It is defined as a set of outcome of an experiment. Event is defined as a set of outcomes of some experiment. अब जब मैं बोलता हूं सेट ऑफ आउटकम्स, तो सेट ऑफ नो आउटकम तो एम्प्टी सेट भी हो सकता है, सेट ऑफ वन आउटकम तो सिंगलटन सेट भी हो सकता है, सेट ऑफ मोर देन वन आउटकम ऐसा भी हो सकता है. सेट ऑफ वन आउटकम अगर हुआ, एक ही आउटकम है, उसको बोलते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट को एक बारी परफॉर्म किया तो जो आया उसको बोलते हैं सेट ऑफ इंडिविजुअल आउटकम. और ऐसी इवेंट को सिंपल इवेंट या सैंपल पॉइंट बोलते हैं. तो अभी हम लोग कैटेगराइजेशन में भी आएंगे, अभी सीधे डिफाइन कर दो. एनी सेट ऑफ आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, occurrence of 1, occurrence of 2, 3, 4, 5, 6, etc. are outcomes of rolling a fair dice. Or occurrence of prime phase like 2, 3, 5, it is also an outcome of rolling a fair dice. तो ये सब इवेंट है जब एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ फेयर डाइस. अब इवेंट को कैटेगराइज कर लो, तो आप बोलेंगे इवेंट्स प्राइमरली हम दो पार्ट में, वैसे तो इवेंट की बहुत सारे बातें आप इवेंट में पढ़ेंगे, हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी भी हैं. बट फंडामेंटली इवेंट के दो कैटेगरीज हम बोलेंगे. एक बोलेंगे सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट क्या है वो लिखेंगे, इसी को सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है. सिंपल इवेंट या सैंपल पॉइंट क्या होता है, तो लिखेंगे सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. Write it down. Single performance of an experiment results into an outcome which is known as simple event or sample point. So I repeat, an individual outcome of experiment is called sample point. पहले मैंने क्या बोला,
अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को एक बारी परफॉर्म करो, लाइक ए कॉइन है, एक बारी टॉस करो तो क्या आएगा? हेड आ सक मान लो हेड आ गया तो हेड एक सैंपल पॉइंट है। फिर से टॉस किया, मान लो टेल आ गया, सैंपल पॉइंट है। फिर से टॉस किया, हेड आ गया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो एक सिंगल सिंगल परफॉर्मेंस में तो दोनों में से एक ही आएगा ना, कि दोनों आ जाएगा? एक ही आएगा। तो वो सिंगल परफॉर्मेंस का जो आउटकम है उसी को हम इंडिविजुअल आउटकम बोलते हैं, और इंडिविजुअल आउटकम को हम क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल पॉइंट बोलते हैं। इंडिविजुअल आउटकम्स आर नोन एज सैंपल पॉइंट्स। तो सिंपल इवेंट या सिंपल एंड मिक्स्ड इवेंट सभी लोगों को क्लियर है बेटा? ठीक है। तो डबल हेड, एक पर हेड एक पर टेल या डबल टेल, ये सिंपल पॉइंट है व्हेन अ पेयर ऑफ कॉइन आर टॉस्ड, बट अकरेंस ऑफ सेम फेस मिक्स्ड इवेंट है। अकरेंस ऑफ डिफरेंट फेस मिक्स्ड इवेंट है। रोलिंग अ डाइस में 1 2 3 4 5 ऐसा इंडिविजुअल 1 से लेके 6 तक की नंबर में से कोई भी नंबर का अकरेंस क्या है? सैंपल पॉइंट या सिंपल इवेंट है। बट ऑड नंबर का आना, इवन नंबर का अकरेंस, प्राइम नंबर का अकरेंस, मल्टीपल ऑफ 3 का अकरेंस, ये सब क्या है? मिक्स्ड इवेंट्स है। तो मिक्स्ड इवेंट भी समझ में आ गया, सिंपल इवेंट। अब आ जाते हैं हम इवेंट एंड सैंपल स्पेस, ये हेडिंग देंगे क्योंकि यहीं से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो इवेंट स्पेस क्या है? स्पेस मतलब क्या होता है? स्पेस मतलब समथिंग विच इंक्लूड्स। इवेंट स्पेस का मतलब क्या हुआ? इवेंट स्पेस का मतलब है कि इट इज अ सेट ऑफ those sample point which are in favor of the given event. तो लिख दो, event space is the set of all those sample points which are favoring the event that follow the given event. E is known as event space or event set of E. ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि रोलिंग पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस, अब मैं एक इवेंट लिख रहा हूं, दो तीन इवेंट लिख रहा हूं, आप उनका इवेंट स्पेस लिखना कोशिश करना। E1 E2 E3 तीन इवेंट में डिस्क्राइब कर रहा हूं। E1 है अकरेंस ऑफ सम ऑफ फेसेस 5। E2 है प्रोडक्ट ऑफ फेसेस प्राइम। E3 है प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। चलो भाई, ये तीनों इवेंट का हमें इवेंट स्पेस लिखना है। तो समेशन ऑफ फेसेस 5, तो इवन अगर हम इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहें तो कौन से केस हो गए? तो 1 के साथ 4 4 1, ये दो केसेस हो गए, है ना? 2 3 3 2 भी हो जाएगा, 2 3 एंड 3 2। अब 2 से बड़ा 3 एंड 4, 4 से बड़ी तो कोई नंबर हो नहीं सकती जो 5 है। 5 होगा तो एक पे 0 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं। तो ये इवेंट सेट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट स्पेस ऑफ इवन। ये इवेंट स्पेस ऑफ इवन है। और अगर कोई बोले, इसी को इवेंट सेट भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ इवन अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे बेटा?
तो काउंट कर लो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 4। तो इवेंट स्पेस निकालना और इवेंट सेट, इवेंट स्पेस मतलब इवेंट सेट, और उसका साइज बताना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर बताना। तो E1 इज, आई हैव वर्कड आउट E1 फॉर यू। अब E2 E3 बताइए जल्दी से, E2 और E3 लिखिए। E2 का इवेंट सेट क्या होगा? E2 प्रोडक्ट ऑफ फेसेस प्राइम। फेसेस नेचुरल नंबर हैं, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट प्राइम कब हो सकता है? जब एक उसमें से वन हो और दूसरी प्राइम हो, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होती है विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, तो उसमें दो प्राइम्स नहीं हो सकती फैक्टर। तो अब ये सी बात है कि एक तो फेस वन ही होगा, तो वन, और दूसरा प्राइम होगा तो वन वन, ये तो नहीं हो सकता। वन टू हो सकता है, टू वन हो सकता है, वेरी करेक्ट। वन थ्री थ्री वन हो सकता है, वेरी करेक्ट। एंड वन फाइव फाइव वन हो सकता है, दैट्स ओके। बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 इज 6। तो E1 इवेंट स्पेस बता दिया आपने, E2 भी बता दिया, ऐसे E3 भी बता दो। प्रोडक्ट ऑफ फेसेस परफेक्ट स्क्वायर, प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। प्रोडक्ट जो है, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या हो सकता है? तो x इंटू वाई की वैल्यू 1 होगी मिनिमम और 36 होगी मैक्सिमम। 1 से लेके 36 हो सकती है। x जो है वो फर्स्ट डाइस का आउटकम है, और हमने मान लिया कि y जो है वो सेकेंड डाइस का आउटकम है। तो दोनों आउटकम 1 से 6 के बीच में होंगे, ये भी क्लियर है। अब 1 से 36 में व्हाट आर दी परफेक्ट स्क्वायर्स, पहले ये देखो। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक्स वाई की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 4 होगी 2 स्क्वायर, या तो 9 होगी 3 स्क्वायर, या तो 16 होगी 4 स्क्वायर, या तो 25 होगी 5 स्क्वायर, और या तो 36 होगी। बस और कुछ तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, यही परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। अब नाउ इट इज इजियर वंस यू जस्ट आइसोलेट डाउन, जीरोड इन, दैट ये प्रोडक्ट हो सकता है। अब उसका सेट लिख दो। तो E3 सेट, मैं अब वेट कर रहा हूं, आप देखो कौन कौन आंसर लिखता है। E3 का सेट क्या आएगा, बोलो बेटा। तो सेट E3 विल लुक लाइक दिस। वन, प्रोडक्ट वन होने के लिए 1,1 ही हो सकता है। 4 के लिए 1 के साथ 4, 4 1 2 2, 1 हो गया, 4 हो गया। अब नेक्स्ट 9, 9 के लिए तो पॉसिबिलिटी एक ही है, 3,3। 16 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 4,4। 1 के साथ कुछ नहीं, 2 के साथ तो कुछ नहीं, 3 के साथ कुछ नहीं, 16 के लिए 4,4। 25 के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी है, 5,5। 36 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, 6,6। So what is the number of element in E3? कार्डिनल नंबर क्या आया, इवेंट स्पेस 3। E3 इवेंट स्पेस का साइज क्या आया? तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। तो देखो बेटा, थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में इवेंट स्पेस को फाइंड करना आपको आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब तक इवेंट जो लिखी होगी उस इवेंट का इवेंट सेट को आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, तब तक आप प्रोबेबिलिटी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो पहला स्टेप ही यही होता है, इवेंट स्पेस को समझना और उसको लिखना, डिस्क्राइब करना, फिर उसका कार्डिनल नंबर फाइंड करना। Once you understand what is the event space, then what is the next thing to understand? इवेंट स्पेस समझ में आ गया, तो और क्या समझना है हमें? हमें और समझना है सैंपल स्पेस क्या है। तो इवेंट आया,
सैंपल पॉइंट देख रहे हो ना, सैंपल पॉइंट, तो सारे सैंपल पॉइंट को इकट्ठा करके जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। कुछ एक सैंपल पॉइंट से इवेंट बनती है, सारे सैंपल पॉइंट से सैंपल स्पेस बनता है। तो अब आप लिख दो सैंपल स्पेस क्या है। तो ये स्लाइड को मैं चेंज कर दूं बच्चे? ओके, थैंक यू। तो गो टू दी सैंपल स्पेस, डिस्क्राइब करेंगे बच्चे, सैंपल स्पेस लिखो। जैसे रोलिंग ऑफ अनबायस्ड डाइस, इवेंट, अकरेंस ऑफ ऑड फेस तो 1 3 5, ये सब सारी एग्जांपल आपको समझ में आई गया। पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं, अकरेंस ऑफ डबलेट, तो डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सब इवेंट स्पेस है। सैंपल स्पेस लिखो। सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मेंशन इट, राइट डाउन। सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। Set of all sample points is called sample space. I repeat, all sample point, please notice, इवेंट में सम सैंपल पॉइंट है, यहां पर ऑल सैंपल पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ रोलिंग ऑफ अनबायस्ड डाइस, इसके लिए सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? S1 नेम दो तो क्या होगा? इट इज 1 2 3 4 5 6। रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? इसको मान लो हमने बोला S2, इसका सैंपल स्पेस में दो डाइस है, पहले डाइस पर और दूसरे डाइस पर आउटकम, मान लो पहले डाइस पर नंबर x आ रही है, दूसरे डाइस पर y आ रही है, तो x, y ऑर्डर्ड पेयर सैंपल स्पेस होगा, सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग टू S1। यहां से आएंगे x y, तो ऑब्वियसली कितने एलिमेंट होंगे? अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 के साथ इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, है ना? ऐसे 2 के साथ 2 1 2 2 and total 2 6, and going similarly 6 1 6 2 है ना, and finally 6 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ S2 जो होगा वो आ जाएगा। एक्चुअली जानते हो ना, ये जो S2 लिखा मैंने, ये S1 क्रॉस S1 है। S1 का कार्टिजियन प्रोडक्ट S1 से ले लो तो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे ऐसे। तो ये नंबर ऑफ S2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ S1 क्रॉस S1, और कार्टिजियन प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S1, तो आ जाएगा 6 इंटू 6, 6 स्क्वायर, 36 एलिमेंट होंगे। दिख भी रहा है, 1 से 6 बनेंगे, 2 से भी 6 बनेंगे, 3 से भी 6 बनेंगे, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, तो 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये सैंपल स्पेस है। मैंने दोनों इवेंट का सैंपल स्पेस आपको लिख के बता दिया, दोनों का, दोनों एक्सपेरिमेंट का। कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लो। क्लियर है तो बोलो यस, इट इज ऑल क्लियर। S1 भी समझ में आ गया, S2 भी समझ में आ गया, और S2 में 36 एलिमेंट होंगे, S1 में 6 एलिमेंट होंगे, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस लिखना और किसी स्पेसिफिक इवेंट का इवेंट स्पेस लिखना, ये आपको आता है। और अगर ये दोनों आता है तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो क्लासिकल फॉर्म है, जो आपके 11th में है, वो आप आराम से कर जाएंगे। तो अब आप एक जगह यहीं पर डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में, हालांकि बाद में डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लो। ठीक है, तो जब हम एक एक्सपेरिमेंट लेंगे तो उसका कोई सैंपल स्पेस होगा,
जब हम उस एक्सपेरिमेंट के साथ कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट को क्लब करेंगे तो वो दोनों सैंपल स्पेसेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। जब आप 3 स्पेस एक्सपेरिमेंट को क्लब कर दोगे, है ना? जैसे आप बोल दो कि एक कॉइन को टॉस करना और 2 डाइस को रोल करना। क्या बोला मैंने? पहले ऐसा बोलते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन। तो सैंपल स्पेस आ गया H, T। अब मैंने बोला टॉसिंग अ कॉइन एंड डाइस, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, H1, H2, H3, H6, फिर T1, T2, T3, T6, ऐसा। तो इसका जो सैंपल स्पेस है, अगर मैं इसको बोलूं S1 और इस वाले को बोले S, तो ये जो टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाइस, ये मिक्स्ड जो एक्सपेरिमेंट किया, इसका सैंपल स्पेस हो गया क्या? S1 क्रॉस S, S1 क्रॉस S। ये S है और ये S1 है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया तो 12 एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसे फॉर्म होगा सैंपल स्पेस। चलिए ये 3 क्वेश्चन का फटाफट आंसर करिए, फिर मैं प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, इवेंट को और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द सैंपल स्पेस कैपिटल S फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट एंड इवेल्युएट नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। बोला क्या? रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन, अभी मैंने डिस्कस कर दिया था तो इसकी बात तो खत्म हो गई। रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? 1H, 1 टेल, 2H, 2T, 3H, 3T, 4H, 4T, 5H, 5T and 6H, 6T। ये सैंपल स्पेस हो गया। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 2, दैट इज 12। बी एंड सी, ऐसा नहीं है कि सैंपल स्पेस लिखना बहुत आसान होता है, इवेंट स्पेस लिखना बहुत आसान होता है, इसमें भी कई बार ऐसा होगा कि आपको सैंपल स्पेस लिखना ही समझ में नहीं आएगा। रोलिंग 3 डाइस सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका सैंपल स्पेस एस कैसे लिखेंगे? ऐसे सीधे लिख दो, कलेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा, सच दैट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू कहाँ? एस नॉट, वेयर एस नॉट इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 अप टू 6। तो ये ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया जी। कोई डाउट है तो बोल देना बेटा, ये दोनों तो क्लियर है आपको। रोलिंग 2 डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन, 2 डाइस और कॉइन, इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? तो ये 2 डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा? रोलिंग पेयर ऑफ डाइस का सैंपल स्पेस वो होगा एक्स कॉमा वाई टाइप का, सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एस नॉट, ये। एंड कॉइन का, कॉइन का सैंपल स्पेस होगा हेड कॉमा टेल, ये S1 है मान लो और ये S2 है,
इन दोनों को क्लब कर रहे हैं, तो हमारा जो ये वाला इवेंट है, ये इस इवेंट का सैंपल स्पेस हम क्या लिखेंगे? S1 क्रॉस S2। इसमें 36 एलिमेंट है, इसमें 2 है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 क्रॉस S2 क्या आएगा? नंबर ऑफ S1 इंटू नंबर ऑफ S2, दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 2, 72 ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे। वो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट x कॉमा y कॉमा z, such that x and y belongs to S0, S0 मतलब 1 से 6, and z belongs to S2। मैं S0 और S2 हाईलाइट करता हूँ, ये S2 है बेटा, ये S0 है, दिस इज S0 एंड दिस इज S2। तो कुछ एग्जाम्पल इसके लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं, जैसे कि 1, 3 हेड, 2, 3 हेड, 2, 3 टेल, 3, 2 हेड, ऐसा। तो ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिलेंगे जो इसके सैंपल पॉइंट्स होंगे। दीज आर द सैंपल पॉइंट्स। कौन सी इवेंट का? थर्ड, सी का। अब आप जरा सेकंड और थर्ड का आंसर कर दो अपने आप। सेकंड और थर्ड आपको आंसर खुद अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। 2 मिनट के बाद मैं दोनों पार्ट डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे मूव करूंगा। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 2 में क्या लिखा बेटा? There are 30 tickets numbered consecutively as 1 से 30 represent the sample space and event space for drawing a ticket containing number which is multiple of 2। तो अगर मैं सेकेंड इलस्ट्रेशन का ए पार्ट की बात करूं तो सैंपल स्पेस तो क्लियर है, क्या होगा? 1, 2, 3 अप टू 20, 30, ये सैंपल स्पेस होगा। इवेंट स्पेस क्या होगा? अगर ये इवेंट को हम ई बोल रहे हैं तो इस इवेंट का स्पेस क्या होगा? ड्राइंग अ टिकट नंबर्ड कंटेनिंग द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2। तो इसमें क्या क्या आएगा बोलो? 2, 4, 6, 8 अप टू 28, 30। तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ E इज इक्वल टू 15। 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30। तो पहला पार्ट वाज एज सिंपल एज यू कैन सी दिस, राइट। नाउ गो टू द सेकंड वन, ड्राइंग अ टिकट कंटेनिंग प्राइम नंबर। तो बी पार्ट में ई इवेंट स्पेस हमारा क्या होगा? 1 और 3। 1 तो प्राइम नहीं है, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ये तुम्हारा इवेंट स्पेस हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या होगा? काउंट करो, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको? ओके। अब ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 10वीं तक आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम इवेंट ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। एन ई बाई एन एस उस मेथड से जाएं तो इस यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एन ई इज 15/30, मतलब 1/2। तो 1 से 30 तक के टिकट से रैंडमली एक टिकट ड्रॉ किया, इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो इवन नंबर टिकट होगा? 1/2। प्राइम नंबर टिकट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 10/30 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। बट
अभी जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो ऐसा नहीं कि हर केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एनी बाई एन एस आ जाता है, उसमें भी कैच है, राइट? दैट्स वाई अभी मैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जो आप जानते हो उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा समझते रहो कि मतलब 50% चांसेस है कि ये इवेंट होगी और 1/3 चांसेस है कि ये इवेंट होगी इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस, राइट? इलस्ट्रेशन 3 पे जाइए, थर्ड इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। बोल रहे कमेंट ओवर दिस स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल स्पेस इज यूनिक फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस का रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक ही, किसी एक्सपेरिमेंट का एक ही सैंपल स्पेस डिफाइन किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट के ऊपर आप अपना कमेंट दीजिए, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्विक, जल्दी आंसर करिए। फटाफट सोचो, इतना टाइम नहीं है उस पर सोचने का ना, इतना बहुत खतरनाक सा प्रॉब्लम ही मैंने पूछा हुआ है कि आप इसको इतना सोच करके बताओ। ये बात सही है गलत? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपका विजन क्या है? सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप बोलोगे सैंपल स्पेस क्या है, व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज सेट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, ऑल सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इसी को हम सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। सैंपल पॉइंट्स की खासियत क्या होती है? ये जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं ये सिंगल्टन सेट्स होते हैं और डिसजॉइंट होते हैं एक दूसरे से। ये दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी इवेंट को, कोई भी इवेंट सैंपल पॉइंट हो सकती है, लेकिन किसी भी इवेंट को सैंपल पॉइंट हम कब बोलेंगे? जब वो डिसजॉइंट हो और सिंगल्टन हो। अब एक एक्सपेरिमेंट का एक ही सैंपल स्पेस हो सकता है, ऐसा बोला गया। क्या ओपिनियन है, जल्दी बोलो। मानसा, रीत, दिशांत? किसी एक एक्सपेरिमेंट का एक ही सैंपल स्पेस होगा, ये बात सही है या गलत, ये बताना आपको। फॉल्स है। फॉल्स है तो आप मुझे बताओ। इसका मतलब आप बोल रहे हो मानसा कि एक सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा, एक एक्सपेरिमेंट के कई सारे सैंपल स्पेस हो सकते हैं, तो इसका एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल, आपने बोला फॉल्स, आई एग्री टू यू मान लो, तो आप इसके एग्जाम्पल दो। आप वर्बली बोल सकते हो, अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हो बेटा, मैंने म्यूट करने का ऑप्शन, अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इवेंट सेट एंड ऑड सेट, सैंपल स्पेस क्या हुआ ये बताओ। अच्छा मतलब आप, इन्होंने बोला कि ये जो केस था, इसी केस में सैंपल स्पेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई और ओ, ई
even number occurred, and O, odd number occurred. वेल ठीक है, तो हमने दो इवेंट मान ली E and O because suppose the observer is not at all concerned about which number is going to be there on the ticket. He is only concerned about कि even मिल रहा है या odd. Even वाले कौन है और odd वाले कौन है, right? तो उसके लिए 1 3 5 7 9 ये सेम है, odd है, odd 2 4 6 ये सेम है, even. तो ये दो, तो सैंपल स्पेस ये भी हो सकता है, रादर देन कि हम सैंपल स्पेस को ऐसा लिखें. ठीक है, इतना नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर. ठीक है, tossing of 3 coins. What is the sample space in ordinary condition? Sample space is triple head, head, or head, दो हेड और एक टेल, ऐसे 3 केसेस बनेंगे. टेल की पोजीशन चेंज करते जाओ. दो टेल और एक हेड के भी 3 केसेस बनेंगे. टेल हेड, और हेड की पोजीशन को चेंज करते जाओ. THT एंड HTT और ट्रिपल T. तो दिस इज अ सैंपल स्पेस इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. कोई भी बच्चे को बोलोगे कि 3 कॉइन के टॉस करेंगे, तो 3 कॉइन के टॉस में सैंपल स्पेस लिखो, तो यही लिखेगा यूजुअली. बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक गेम हो रहा है, मान लो गैम्बलिंग हो रही, मान लो कैसीनो है कोई, और वहां पर 3 कॉइन को लेके प्ले कर रहे हैं प्लेयर्स. और सपोज करो कि वन हु गेट्स more number of head wins. ऐसा कोई गेम आप ले रहे हैं, तो जो विनर है, जो प्लेयर है, वो किसका, प्लेयर्स का कंसर्न अब क्या होगा? प्लेयर का कंसर्न ये तो नहीं होगा ना कि कौन से कॉइन पर हेड आ रहा है. नो. अब नाउ व्हाट इज द कंसर्न ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर? हाउ मेनी हेड्स. So number of head is the concern. So what are the possibility when you are throwing 3 coins, tossing 3 coins, then what are the possibility? There is a possibility that no head, 0 head, or 1 head, or 2 head, or all 3 head. तो सैंपल स्पेस ये हो गया. अब 0 हेड कौन कौन से केस में आएगा? तो 0 हेड के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही सैंपल पॉइंट है, TTT. एक ही सैंपल पॉइंट इसको सपोर्ट करेगा. बट जब 0 हेड आएगा तो 1 हेड, ये चारों जो है वो डिसजॉइंट इवेंट है. 1 हेड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से केस है? तो ये इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से सैंपल पॉइंट है? 1 हेड, ये और ये. इसी तरह से इसको सपोर्ट होने वाला, इसको सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक ही था. एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं बोलूं इसको सपोर्ट करने वाला कौन सा था, तो एक ही था, ये. इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि भाई एक बात बताओ, इसको सपोर्ट करने वाला कौन है, इसको, ये 2 को, तो आप बोलेंगे ये और ये. बट क्या इन चारों इवेंट्स में ये 4 सैंपल पॉइंट हो गए, ये चारों सैंपल पॉइंट में कुछ कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है, सब डिसजॉइंट सेट्स हैं. तो ये भी एक सैंपल स्पेस है. तो आई कैन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट I may choose to write the sample space like this, or I may choose to write the sample space like this. तो एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए कई सारे डिफरेंट सैंपल स्पेसेस लिखे जा सकते हैं. ये मेरा बताने का पर्पस था. समझ में आ गई बात कि नहीं? सबको क्लियर हो गया? तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो.
बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल बात है तो ये क्लियर हो जाएगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर आप गलतियाँ करेंगे या मिस इंटरप्रेट करेंगे वो बातें समझ में आ जाएंगी, अभी से एड्रेस हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर चुके हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। मैंने बोला पहली क्लास के अंदर में मेरा कंसर्न क्वेश्चन कराना नहीं है, सिर्फ टर्म्स एंड डेफिनेशन करानी है। अगली क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहली क्लास हेवी होती है क्योंकि थ्रेटिकल होती है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइप ऑफ सैंपल स्पेसेस लिख दो। अभी तक हम लोग इवेंट की बात कर रहे थे, फिर इवेंट को कैटेगराइज किया, इवेंट स्पेस सैंपल स्पेस समझे, सिंपल इवेंट मिक्स्ड इवेंट समझ लिया। अब सैंपल स्पेस भी दो तरह के होंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड इनफिनाइट सैंपल स्पेस। फटाफट वर्चुअल लिख दो, ये वैसे ही बेटा सैंपल स्पेस एक सेट होता है, फाइनाइट सेट इनफिनाइट सेट मैं सेट कराते समय बता चुका हूँ, इसलिए सीधे लिखना, मैं कुछ इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधे लिखो। सैंपल स्पेस विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर नोन एज फाइनाइट सैंपल स्पेस, एंड फाइनाइट सैंपल स्पेसेस आर ऑलवेज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब वो काउंटेबल जिसको बोलते हैं ना, काउंटेबल। Finite sample space are always discrete or countable. Sample spaces in the experiment like rolling a dice, tossing a coin, ये सब क्या है? ये finite sample space के example है. Infinite sample space where the number of elements or number of sample point are infinite is called infinite sample space. They may be discrete, they may be continuous. तो इन्फिनिट सैंपल स्पेसेस दो तरीके के होंगे, डिस्क्रीट मतलब काउंटेबल और कॉन्टिन्यूस मतलब अनकाउंटेबल। डिस्क्रीट सैंपल स्पेसेस एंड कंटिन्यूस सैंपल स्पेसेस। ये जो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है, बिकॉज मैंने बताया था सेट में ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, इसमें बताने का कुछ नहीं है। अभी एक बार पहले मैं सारा बता दे रहा हूं, फिर आप स्ट्रेट अवे इसको नोट कर लो, आई विल गिव यू टाइम। अब ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस मतलब जिसमें एलिमेंट्स कैन बी पुट इनटू 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, इसी को हम काउंटेबल बोलते हैं। तो काउंटेबल इनफिनाइट जिसको हम नेचुरल नंबर से लिंक कर सके, और कॉन्टिन्यूस मतलब in which the sample points cannot be corresponded with natural numbers. जैसे चूजिंग अ नंबर फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सैंपल स्पेस क्या है? डिस्क्रीट है, काउंटेबल है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इट हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली, जैसे randomly choosing a point inside a circle of unit radius, या randomly selected a real number। जैसे अगर मैं बोलूं, समझो ध्यान से, ये है तुम्हारा 0, 1, 2 नंबर लाइन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं बोलूं a natural number is selected between 0 and 10, find probability that it's divisible by 3। तो ऐसे केस में बेटा जो सैंपल स्पेस तुम्हारा होगा वो नेचुरल नंबर डिस्क्रीट होती है ना, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, तो सैंपल स्पेस होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इवेंट स्पेस क्या हो जाएगा? इवेंट स्पेस तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, 3 का मल्टीपल तो 3, 6, 9। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सीधे सीधे हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, 3 फेवर में है, टोटल 9 है, तो 3/9 दैट इज 1/3। ये जो डिस्कशन हुआ ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस का एग्जांपल है, फाइनाइट डिस्क्रीट का एग्जांपल, फाइनाइट डिस्क्रीट का एग्जांपल। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां नेचुरल नंबर हटा दूं,
ये नेचुरल नंबर की जगह अगर मैं कर दूं रियल नंबर, इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से, रियल नंबर। अब जैसे मैं रियल नंबर करूं तब लफड़ा क्या हो जाएगा, अब सैंपल स्पेस रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लाइज 0 to 10। अब इसमें इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं तो एनएस इन्फिनिटी हो गया, और ये इन्फिनिट नंबर्स जो है रियल नंबर्स काउंटेबल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस सैंपल स्पेस हो गया। तो ऐसे आपको समझने की बात मैं बोल रहा हूं, दिस इज व्हाट आई मीन टू से दैट कंटिन्यूअस क्या है, डिस्क्रीट क्या है, फाइनाइट क्या है, इन्फिनिट क्या है। तो सैंपल स्पेस का टाइप समझ में आ गया सबको? फटाफट बोलते जाओ, क्लियर है? नाउ आराम से नोट कर लो बेटा, और नोट हो जाए मुझे तुरंत बता दो, ये सारे पॉइंट फटाफट फटाफट नोट करो, क्विक, जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? तो यस, फटाफट बोलो, शुड आई चेंज द स्लाइड? अब फटाफट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। फाइंड द नेचर ऑफ सैंपल स्पेस इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स। टॉसिंग, अब थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूं मैं आपको कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स, ये सैंपल स्पेस का नेचर बताना है कि ये फाइनाइट है, इन्फिनाइट है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है। दूसरा, द लाइफ ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड कंप्यूटर हार्ड डिस्क मेजर्ड, ये एक ऐसा सैंपल स्पेस का एग्जांपल है, कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है, फाइनाइट है या इन्फिनाइट है। पहला इन्फिनाइट है, वेल वेरी करेक्ट। इसका सैंपल स्पेस लिख के बताओ, राइट डाउन द सैंपल स्पेस फर्स्ट केस का। टॉसिंग अ क्वाइन टिल फर्स्ट हेड अपीयर का सैंपल स्पेस, वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन, गुड। एच टी एच, फर्स्ट पे टेल आया, सेकंड बारी टेल आया, फिर हेड आया, टी 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 एच एंड दिस विल गो। तो ये है कॉन्टिन्यूस, ये क्या है, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, काउंटेबल है और इन्फिनाइट है। जीरो
टेल के बाद हेड आया, 1 टेल के बाद हेड आया, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल के फॉलोड बाय हेड, ऐसा हो गया। तो x नंबर ऑफ टेल्स फॉलोड बाय हेड। या हेड फॉलोड बाय x नंबर ऑफ टेल, या प्रिसीडेड बाय x नंबर ऑफ टेल्स। तो ऐसा हो गया। तो ये सैंपल स्पेस कैसा है? ये सैंपल स्पेस इनफाइनाइट नेचर का है और डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। पहला हो गया। दूसरा, लाइफ टाइम ऑफ अ रैंडमली चोजन हार्ड डिस्क मेजर्ड। तो द लाइफ टाइम x कैन बी 0 to t, मतलब हो सकता है हार्ड डिस्क इमीडिएटली फेल कर जाए, या टी मोमेंट, टी सेकेंड के बाद फेल करे, एंड टी कैन वेरी, टी कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर कंटिन्यूस होता है। तो ये तुम्हारा क्या है? इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। पहला क्वेश्चन क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। ये हो गया, इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। अब सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या लिखोगे इसमें? ये सेकेंड इलस्ट्रेशन के लिए सैंपल स्पेस लिखोगे कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज अ रियल नंबर, एंड इसका फैक्टर करो, x बिलोंग्स टू 1 to 7 क्लोज इंटरवल। तो डेफिनेटली ये सैंपल स्पेस इनफाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूस है। मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये नंबर लाइन पर एक नंबर 1 है, एक 7 है, 1 से 7 के बीच की रियल नंबर सारी कंटिन्यूस हैं, और एक दो नहीं, कितनी है? इन्फिनिट है। तो ns इन्फिनिटी है। और इवेंट स्पेस क्या है? इवन। x-4 का मॉड ग्रेटर देन 2 है, x का डिस्टेंस 4 से मेजर करो तो 2 यूनिट से ज़्यादा है, तो x की वैल्यू या तो 2 से कम होगी ऐसा कर लो, ऐसा। ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4 - 2 से लेस, मतलब या तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, और या तो 6 से बड़ा ये इंटरवल आ जाएगा। ये इवेंट स्पेस आ गया। तो ये भी इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है, इवेंट स्पेस भी इनफाइनाइट है। तो जब ns भी इनफाइनाइट है और ne भी इनफाइनाइट है, क्योंकि इस इंटरवल में भी तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो यहां मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इंटरवल। क्योंकि ये तो हमें पता है कि 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, बट ये भी पता है कि 1 से 3 के बीच में डबल इनफाइनाइट, जो 1 से 2 है उसका जस्ट डबल नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो लेंथ के प्रोपोर्शनेट है नंबर ऑफ नंबर्स, राइट? तो हमने लेंथ से मेजर कर लिया, तो एक्चुअली ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी यहां से यहां तक? तो लेंथ वाली एनालॉजी यूज करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस जो है वो हो जाएगा 6k, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हो जाएगा 2k।
k क्या है? k इज नंबर ऑफ पॉइंट्स इन यूनिट लेंथ ऑफ इंटरवल, ये मान लिया। तो बाय एज्यूमिंग दैट वन यूनिट इंटरवल हैज k नंबर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, तो उस एजम्पशन से ns 6k हो जाएगा, ne 2k हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ e जो है वो 2k बाई 6k दैट इज 1/3 हो जाएगी। तो जब इन्फिनाइट सैंपल स्पेस की बात आएगी, ये बिल्कुल एंड में डिस्कस होगा +2 में। इन्फिनाइट सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, उसमें हम ज्योमेट्रिक एनालॉजी, लेंथ के लीनियर, अगर सैंपल पॉइंट है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेंथ, एरिया में रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एरिया, 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, और वहां से हम इन्फिनिट को फाइनाइट मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनफाइनाइट सैंपल स्पेस थोड़ा इंट्रोड्यूस किया कि इनफाइनाइट सैंपल स्पेस वाला केस भी पूछा जा सकता है। ऐसे ये वाला केस भी कर लेना। मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? x इज लेस देन 4 माइनस 3 और x इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3। तो ये आ गया x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 7। तो भाई कोई भी केस नहीं आएगा, तो ये नल सेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ E2 इज 0, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्टली आ जाएगी 0। तीसरा केस पर भी, तीसरा इलस्ट्रेशन भी कर जाऊं। A point is chosen randomly on or within a circle. Find the probability that it lies nearer to the circumference than the center. अब देखो बात क्या हो रही है, प्रॉब्लम को समझो। एक सर्कल है, r रेडियस है मान लो। इस r रेडियस के सर्कल का सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा। मान लो ये सेंटर है, इसकी रेडियस r है, सेंटर यहाँ है ना। अब इस सर्कल के सरकमफ्रेंस ऑन एन इनसाइड एक पॉइंट सेलेक्ट हुआ, मतलब हम पॉइंट, जिन पॉइंट की बात करें, ऑल दोज पॉइंट विच आर लाइंग इनसाइड और ऑन दिस सरकमफ्रेंस। कितने पॉइंट हैं? इन्फिनिट। तो ऑब्वियसली एनएस इन्फिनिट है। ये सारे पॉइंट, सारे जितने पॉइंट इसमें ऐसे हो सकते हैं ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डॉट्स हो सकती हैं, ये सारे पॉइंट हमारे सैंपल स्पेस हो, सैंपल पॉइंट होंगे। अच्छा जी, अब जब प्लेन में सैंपल पॉइंट कितने इन्फिनिट है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेट वन स्क्वायर यूनिट स्क्वायर रीजन, एक स्क्वायर यूनिट रीजन हैज k नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, k नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो एनी हमारा जो हो जाएगा, एनी, इस पूरे की एरिया क्या होगी? अगर रेडियस r है तो एरिया क्या हो जाएगी? पाई r स्क्वायर इज द एरिया। एक स्क्वायर यूनिट में k पॉइंट है तो इनटू k। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट सेलेक्टेड लाइज नियरर टू सरकमफरेंस देन द सेंटर। नियरर या फार्दर पता करने के लिए पहले हम इक्वल डिस्टेंस वाला पता करते हैं, वो पॉइंट जो सरकमफरेंस और सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है। तो ऐसे एक सर्कल में लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो सर्कल अंदर में जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया रेड कलर से, ये सर्कल के पॉइंट सरकमफरेंस और सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। ये r/2 रेडियस का हो गया, मान लो ये r रेडियस का था, ये r/2 रेडियस हो गया। तो विच पॉइंट आर फेवरेबल पॉइंट्स? फेवरेबल पॉइंट्स कौन से हुए? जो सरकमफरेंस के पास है और सर्कल से दूर है, मतलब ये पॉइंट फेवरेबल हो गए। सेंटर से दूर है, अवे फ्रॉम सेंटर है, नियरर टू सरकमफरेंस। तो एनी क्या हो जाएगा?
तो एन, ये तो एन एस था बेटा, एन एस, एन ई नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, ये तो एन एस था। एन ई क्या हो जाएगा, तो एन ई हो जाएगा ये वाला रीजन जो अभी मैंने शेड किया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर के माइनस ये अंदर वाला एरिया हटा दो, पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर इंटू के, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 1/4, तो 3 पाई आर स्क्वायर के बाई 4। तो ये एन ई हो गया, एन एस हो गया, ये एन ई हो गया। तो अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जब एन ई बाई एन एस करेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट एन एस इन्फिनिटी है, एन ई भी इन्फिनिटी है, तब तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन जब हम एरिया से कनेक्ट कर देंगे, तो एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन की एरिया फाइनाइट है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4। मतलब 75% चांसेस हैं कि जो रैंडमली अगर कोई पॉइंट इस सर्कल में सेलेक्ट करोगे तो वो सरकमफ्रेंस के पास होगा और सेंटर से अवे होगा। तो जब इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का प्रॉब्लम होगा तो कुछ इस तरह से डील करना पड़ेगा। जब फाइनाइट सैंपल स्पेस का प्रॉब्लम होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए एनी बाई एन एस स्ट्रेट अवे इस्तेमाल होगा, है ना। तो ये सारा जो एलिमेंट्री पार्ट है जो आज मैंने डिस्कस किया, आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। एक बार मुझे कंफर्म करो। ठीक है, तो ये आप नोट कर चुके हैं, इसको हटा दूं मैं स्लाइड को। गुड गुड। अब आप फटाफट जल्दी जल्दी जो कुछ भी अभी डिस्कस किया ना उस पर केवल क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ते जाइए और फटाफट आंसर करिए। कैलकुलेशन बहुत मिनिमल होगा, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस का एक बार करेंगे और फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। और अगली क्लास में, मतलब कल जो क्लास होगी, आई थिंक कल ही होगी ना, हाँ, तो उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन और सवाल क्वेश्चंस करेंगे। बोला कि विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू in a throw of 3 fair dice, occurrence of prime face on each is a mixed event। 3 फेयर डाइस को थ्रो कर रहे हैं, हर एक के फेस पर प्राइम नंबर आ रही है, ये इवेंट एक मिक्स्ड इवेंट है। ट्रू और फॉल्स। तो जैसे एक आउटकम हो गया 2 2 2, एक आउटकम हो गया 2 3 3, एक आउटकम हो गया 2 3 5, तो बहुत सारे आउटकम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, मिक्स्ड इवेंट है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। चलो कैरी ऑन क्विक, सी एंड डी। मैं आपके आंसर्स को ट्रैक कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि जितने जल्दी करेंगे तुरंत क्लास वहीं पर कंक्लूड करनी है। इन अ टॉस ऑफ 3 फेयर कॉइन, अकरेंस ऑफ एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल का आना, ये एक सिंपल इवेंट है। 3 कॉइन को टॉस करने पर अकरेंस ऑफ एट द मोस्ट 1 टेल इज सिंपल इवेंट। एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, मतलब ट्रिपल हेड, टेल, हेड हेड, ये दो तो क्लियर दिख रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसे दो और होंगे, मतलब ये सिंपल इवेंट नहीं है, मिक्स्ड इवेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इन अ टॉस ऑफ 4 कॉइन्स, अकरेंस ऑफ एट लीस्ट 3 हेड, 4 कॉइन के टॉस में कम से कम 3 हेड का आना, कम से कम 3 हेड का आना एक सिंपल इवेंट है। ट्रू और फॉल्स। कम से कम 3 हेड, हेड 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 टेल,
हेड टेल हेड 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 हेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसमें तो ऐसे टोटल 5 केसेस आ जाएंगे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपने देखा कि 2 फॉल्स और 1 ट्रू था, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे जाइए क्विक। If 3 coins are tossed randomly, then represent the sample space and event space for the event head and tail turn alternately. हेड और टेल ऑल्टरनेटली टर्न अप हो रहे हैं, इसका सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस तो 3 कॉइन का आपको पता ही है। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड 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 ट्रिपल हेड एंड हेड टेल हेड टेल हेड हेड एंड हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल एंड ट्रिपल टी। ये तो सैंपल स्पेस हो गया भाई, पहले भी लिख चुके हैं, नई बात नहीं है। इवेंट स्पेस क्या हुआ? इवेंट स्पेस में है हेड एंड टेल टर्न अप ऑल्टरनेटली। तो क्या हुआ बोलो, इसमें से कौन कौन सा इवेंट स्पेस में आएगा बताओ? हेड टेल हेड आएगा, टेल आएगा। तो इवेंट स्पेस में 2 ही आएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। बोल रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग केसेस रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट डिस्क्रीट ऑब्लिक कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस एंड फाइंड एनएस choosing a real number x such that this is less than equal to 0। तो इस इनइक्वालिटी को देखोगे तो x बिलोंग्स टू 2 to 5 आ जाएगा, और 2 to 5 में इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये? इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूअस। पहला हो गया। चूजिंग अ नंबर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड दिस क्या आएगा? इसका फैक्टर करो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो आ गया x की वैल्यू 2 से छोटी या 4 से बड़ी। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 2 से छोटी में तो एक ही आएगा 1, लेस देन इक्वल टू है तो 1 एंड 2, और 4 से बड़ी 4 5 6 एंड ऑन। कैसा है? इनफाइनाइट एंड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट एंड डिस्क्रीट। तो वो इनफाइनाइट कंटिन्यूअस था, ये इनफाइनाइट डिस्क्रीट है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। चूजिंग अ पॉइंट एक्स वाई सच दैट x माइनस 4 से 4 y माइनस 2 से 5। x और y के बारे में क्या दिया हुआ है? x और y दोनों रियल नंबर हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। x है माइनस 4 से 4, y है माइनस 2 से 5। ऐसा एक रेक्टेंगुलर रीजन आ जाएगा, -4 से 4 एंड -2 से 5। तो ऑल द पॉइंट्स विच लाई इन दिस रीजन, कितने पॉइंट है? इन्फिनाइट है और क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो ये इन्फिनाइट कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस, सी हो गया।
डी तो आप देख ही सकते हैं। चूजिंग एन इंटीजर पॉइंट एक्स वाई लाइंग इन दिस, तो ये फाइनाइट डिस्क्रीट हो जाएगा क्योंकि इंटीजर पॉइंट्स हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एक सर्कल है, वो सर्कल के अंदर इंटीजर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि फाइनाइट नंबर में ही आएंगे। ये 3 है, 1 है, 2 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। ऐसे यहाँ पर भी 3 तक जाएगा, यहाँ पर भी -3 तक जाएगा। तो इसमें जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना, ये जो पॉइंट्स का काउंटिंग आएगा जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं, ऐसे फाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो फाइनाइट डिस्क्रीट, फाइनाइट हमेशा डिस्क्रीट होगा, फाइनाइट एंड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। तो आज का जो डिस्कशन है यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस तुमने पूछे हुए हैं बेटा, इसके सॉल्यूशंस अभी मैं शाम तक तुम्हें जो है दे दूंगा, ओके। जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसको मैं क्लास में भी डिस्कस कर लूँगा, जो वर्थ डिस्कशन होगा, अगर आपको सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आएगा तो। और कल की क्लास में हम लोग एग्जैक्टली यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, अगली स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। और कल आपका जो है प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट आपको है 11th के लिए, वो सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए अगर एक आध क्लास और भी आप रखना चाहेंगे, कोई भी बुक से अगर कर रहे हैं तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेट मी कंक्लूड द क्लास हियर। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? 12th का सिलेबस 11th से काफ़ी कम होता है। 12th का सिलेबस 11th से लगभग 60% होता है। और 12th में थोड़ा आप बहुत फास्ट भी करते हो, क्योंकि 11th में आप बिगिनर होते हो ना, तो शुरू के 5 महीने तो आप पैथेटिक होते हो, बिल्कुल आराम से। अगर थोड़ा सा भी स्पीड ज़्यादा होती है तो आप बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हो, है ना। बट 12th में आप शुरू से ही लीड ले हो, क्योंकि 12th में बिगिनिंग के टॉपिक्स तो बहुत ही ईजी हैं। फंक्शन आप बहुत अच्छे से काफ़ी कर चुके हो, तो फंक्शन आपका जो है 1-1.5 महीने का तो बहुत आसान है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान है, वेक्टर 3D बहुत आसान है। कैलकुलस का कुछ पार्ट है जहां पर आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, एल्स 12th इज अ केक वॉक ऑलमोस्ट। बट ये है कि बिकॉज 12th ईजी है ना, और एक स्टोरी जैसी है, फटाफट समझ में आ जाएगा, क्रैम वैम करने का बिल्कुल नहीं है उसमें, कहीं पर भी बिल्कुल भी क्रैम करना का नहीं है, प्योर कॉन्सेप्चुअल है। तो 12th में आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 11th को भी रिवाइज करके रखना है और 12th भी करना है। तो इसलिए 11th का बहुत सारा काम 12th में करते हैं बच्चे। तो आप लोग 11th में अच्छे से किए हुए, बट स्टिल हम 11th का कंटिन्यूस रिवीजन करते रहेंगे 12th के साथ साथ, सो दैट आपको रिवाइज करने का जरूरत ना पड़े। हाँ, सिलेबस जो है देखो, वैसे तो ऑफलाइन क्लासेस जब होती हैं तब तो आराम से अक्टूबर नवंबर नवंबर 5-6 नवंबर तक खत्म हो जाता है। उसमें 1-2 टॉपिक 11th का रिवाइज भी हो जाता है, जैसे पीएनसी रिवाइज हो जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी रिवाइज हो जाता है। बट यूजुअली मैंने बोला कि 11th रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन हमें करना है। इसलिए हम प्लान ही ऐसा बनाएंगे कि आपके लेक्चर्स में हर हर 15 दिन में एक 11th के टॉपिक का टारगेट होगा, और उस 11th के टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो कुछ टेस्ट ऐसे ऐसे 12th के टॉपिक चल रहे होंगे, तो 12th के रेगुलर टेस्ट चल रहे होंगे, और एक टेस्ट ऐसा चल रहा होगा जिसमें 12th का उस टाइम तक जितना कवर हुआ होगा वो होगा, और 11th के 1-2 टॉपिक होंगे। फिर 15 दिन बाद एक टेस्ट होगा, या 20 दिन बाद एक टेस्ट होगा, जिसमें उस समय तक 12th जो कवर हुआ रहेगा वो होगा, प्लस 1-2 टॉपिक 12th के 11th के और ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग करेंगे, सो दैट 12th के रूटीन टेस्ट भी चलते रहे, और कम से कम मंथ में एक टेस्ट ऐसा चलता रहे
जिसमें 11th का, उस टेस्ट में 11th का भी कुछ 2-3 टॉपिक का सिलेबस हो कि 3 टॉपिक, फिर अगला वाला जो टेस्ट हो, मॉड्यूल टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें 11th का 2 टॉपिक और आ गया तो 5 टॉपिक आ गए, फिर 6-7 टॉपिक आ गए, ऐसे करके हम 2-2 टॉपिक ऐड करते जाएंगे, सो दैट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपका 12th खत्म हो जाए। होपफुली, वी होप सो कि ऑफलाइन ही स्टार्ट होगा, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा नहीं, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ और हमेशा इस बात को याद रखो कि इट इज़ बेटर टू यूज द मिक्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, सो दैट जैसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है बेटा, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में बहुत ज़्यादा क्वेरीज नहीं होती है ना, और वो आराम से ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में हैंडल हो जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट का लेक्चर जो है वो ऑनलाइन रखो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चंस करते हैं वो ऑनलाइन रखो। ऑफलाइन में जब आप आओ तो उस समय हम लोग केवल प्रॉब्लम सेशंस करें, केवल क्लास के अंदर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो दैट इज आवर प्लान बेसिकली, आपके डाउट हो और क्लास में प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, उसी कॉन्सेप्ट पर जो हमने सीखा है ऑनलाइन में। तो ऐसा ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा भाग दौड़ भी नहीं होना चाहिए, आपका समय भी बचना चाहिए, और जब आप क्लास के लिए आओ तो पूरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो उस पूरे डिस्कशन का, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो तो क्वेश्चन करते समय दोबारा डिस्कस होगा ही होगा, ठीक है, वहाँ पर।